that there were few Indian people also, those who were the entrepreneur, those who were earning with the whatsoever was going in the worldwide situation or under the globalization, what type of trade, whatsoever type of migration of the people, everything which was going on in the in the world, there were few Indians, like few name they have mentioned, like Shikaripur Shroff and Natukotai Chetias. These type of people were there. Those who used to, those who have earned as well. How they have earned, rather than putting their money in agriculture or anywhere else or industries even, they started giving the finances to the people. Just a loan activity they started. जो आज की डेट में भी होता है, there are loans which is being given through the banks, through the formal sector, and there are different informal sector loans as well. Similarly, these people were there, these entrepreneurs were there, who started their financing part, and they started financing in Europe and different parts of the world as well, in India as well. So they financed export agriculture in Central and Southeast Asia using either their own funds or borrowed from the European bank. So sometimes they used to take loan from European bank and they further give it as the loan to other people. And what was their profit that they earned when they used to take the loan from the European bank, the interest rate that they used to have, they charge more interest rate from the people with to whom they used to lend the money. So वो जो बीच का जो gap था, जैसे banks कमाते हैं, similarly these people generated a lot of money. They had a sophisticated system of transfer money over long distances. They started up with a different kind of system, जिसको यहाँ पे कुछ explain नहीं किया है, just they have mentioned कि यहाँ पे इन्होंने एक sophisticated so called system start किया था, जिससे money long distances में इधर उधर होता था. यूरोप से पैसा उठाते थे, अमेरिका में देते थे, यूरोप से पैसा उठाते थे, इंडिया में लगाते थे, तो finance करते थे. How this was being done, as such there's no description given, but ये जो एक उस टाइम पे एक बहुत अलग सा कुछ सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसको उन्होंने बोला सोफिस्टिकेटेड सिस्टम. जैसे इफ यू हैव हर्ड अबाउट द हवाला मनी बहुत ज्यादा न्यूज में सुना जाता है. पहले बीच में कुछ एक टाइम था जहाँ पे बहुत ज्यादा सुना जाता था. दैट इज ऑल्सो द सेम कंसेप्ट which they talked about here, sophisticated system. So we'll not go in deep of that particular system. It's not part of the chapter, but just they mentioned that there were certain Indian people, those who used to earn, those who earned money with the help of providing loan here and there. The next is Indian trade, colonialism and global system. India के ऊपर क्या impact पड़ा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. It's again a repetition kind of thing. Historically, fine cottons produced in India were exported to Europe. तो अगर हम पुराने टाइम से स्टार्ट करें, तो इनिशियली इंडिया में कॉटन बनती थी फाइन, दैट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड ऑन द एक्सपोर्टेड टू यूरोप, व्हिच ब्रिटिश वाज यूज्ड टू, ईस्ट इंडिया कंपनी यूज्ड टू एक्सपोर्ट on a lesser price. And then because it was the industrialization that happened in Britain, it started in Britain, तो वहां पे वो जाके they used to make final products from those particular fine cottons, and then they sell in India again on the higher prices and in the international market also. So with same thing they're explaining, with industrialization, tariffs were imposed on cloth imports into Britain. Consequently, the inflow of fine Indian cotton began to decline. Indian textile now faced stiff competition in other international markets as well. What then did India export? So if this was not the, if India was facing issue with the cotton export, what was there which India was then exporting? While exports of manufacturers declined rapidly, export of raw materials increased equally fast. Between 1812 to 1871, the share of raw cotton export rose from 5% to 35%. Initially, India से जो garments बनते थे वो ज़्यादा बेचे जाते थे. अब
वैल्यू एडिशन करने के बजाय रॉ कॉटन को, रॉ सामान को बेचा जाने लगा, बिकॉज ब्रिटिशर्स वांटेड दैट रॉ कॉटन फॉर देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन टू फ्लरिश इन देयर नेशन. इंडिगो यूज्ड फॉर डाइंग क्लॉथ बिकेम अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट. जो यहाँ पे इंडिया में इंडिगो प्लांटेशन करा गया ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, दैट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. And from 1820s, India became single largest exporter of opium shipments as well. Opium shipment का यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ opium shipments क्या थी? It was not going to Britain direct. ब्रिटेन इंडिया में ओपियम ग्रो करवाता था क्योंकि वहाँ इंडिया कॉलोनी थी. फिर उस ओपियम को चाइना को बेचा जाता था और उस ओपियम के बदले में चाइना से टी को ट्रांसपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में. तो देयर वाज अ 3-way कनेक्शन व्हिच है दे आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में ये जो इंडिगो प्लांटेशन थी, इंडिगो प्लांटेशन तो व्हाट दे डिड, इंडिगो अपने लिए ब्रिटिशर्स करवा रहे थे. इंडिगो को ब्रिटिशर्स वर यूजिंग फॉर देयर ओन पर्पस, ओन कंट्री. लेकिन जो ओपियम था, ओपियम का 3-way कनेक्शन था. ब्रिटेन इंडिया की मतलब इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी थी, यहाँ पे वो ओपियम ग्रो करते थे. इस ओपियम को चाइना को देते थे और उस चाइना से बदले में ब्रिटेन टी लेता. दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग इंडिया में ओपियम का एक्सपोर्ट उस टाइम पे ज्यादा स्टार्ट हो गया था. सो रादर देन मतलब जो इंडिया की सिचुएशन क्या थी, रादर देन हैविंग द गारमेंट्स एक्सपोर्टेड, उसके बजाय ये गारमेंट्स का एक्सपोर्ट कम हो गया था. रॉ कॉटन ज्यादा जा रही थी, रॉ मटेरियल वाज बीइंग सेंट मोर फ्रॉम द कंट्री, और उसके साथ साथ इंडिगो एज वेल एज ओपियम, ये दोनों का को भेजा जा रहा था, इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा था. देन इंटरवॉर इकोनॉमी. इंटरवॉर का मतलब है बिटवीन, व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग, इन दोनों के जो बीच का टाइम है उसको बोलते हैं दिस इंटरवॉर टाइम पीरियड, इंटरवॉर पीरियड. उस टाइम की इकोनॉमी क्या थी? व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, उसका जो एक बीच का इंटरवॉर टाइम पीरियड था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन दे आर डिस्कसिंग है. The First World War, 1914, starting from the First World War, if we talk about 1914 to 1918, it happened, which was mainly fought between Europe, or but जरूर वो यूरोप से स्टार्ट हुई थी. And we have also discussed about it, that how it got started. As if you remember that European powers were becoming comparatively quite big. They wanted to have the imperialism in the whole nation. They wanted to have control over different nations by making them their colonies to use their resources. So every European country was trying to become more and more stronger, और उसी के लिए they tried to control the Balkan regions, and then this world war started. So ये एक पावर की लड़ाई थी, एक एरियाज को कैप्चर करने की लड़ाई थी. स्टार्ट हुई थी यूरोप में इनिशियली, लेकिन इट गॉट स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड. उसका इम्पैक्ट सारे वर्ल्ड में हुआ. During this period, the world experienced widespread economic and political instability and another catastrophic war. It's a very common thing. अगर हम किसी भी वॉर का कॉन्सिक्वेंस बोलते हैं, टॉक अबाउट एनीथिंग, अगर हम अपने घर में भी बोले एनी काइंड ऑफ वॉर, इफ इट हैपेंस, तो उस वॉर का जो रिजल्ट होता है वो उसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों इंस्टेबिलिटी लाता ही लाता है. सेम थिंग डिड हैपन विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और उसके साथ साथ कैटास्ट्रोफिक वॉर मीन्स कि एक होती है कि आप सामने से लड़ रहे हो, विच इज अ मेजर वॉर दैट इज हैपनिंग, और कुछ होती है उस वॉर की वजह से या उस वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से आप छोटी कुछ लड़ाइयाँ लड़ते हो. कभी कोल्ड वॉर होती है, कभी आप के रिलेशंस खराब होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस खराब होते हैं. दीज ऑल आर द कैटास्ट्रोफिक वॉर्स. तो जब ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई और बहुत छोटी अलग अलग तरह की वॉर्स वर्ल्ड में देखी गई.
ये आपने पहले किया हुआ है, 9th में भी किया हुआ है. There were two different parts in which we divide that in between which the First World War happened. Allies and Axis powers were there. Britain, France, Russia, USA were in the Allied part, and Axis were in the Axis Germany, Austria, Hungary, Ottoman Turkey. So ऐसा नहीं है कि this was the first war. अगर हम अपने Indian history में देखें, when we were under the monarchy system, then also several wars happened. कितनी सारी लड़ाइयाँ थी, तो 5-5, 6-6 साल, 7-7 साल भी चलती थी. But this particular First World War जैसी लड़ाई लोगों ने नहीं देखी थी. There was मतलब people have not seen this type of war ever in the past. उसका रीजन क्या था? that this was the first modern industrial war, जिसके अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की गई, जिसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स यूज किए, वॉर इक्विपमेंट्स को यूज किया which were not earlier present in the society, in the world. So that is why this is termed to be the first modern industrial war, and very which had an impact on the people on very large scale. और इनिशियली जब ये अगस्त 1914 में स्टार्ट हुई थी, तो देयर वर दीज पीपल बट इन द वर्ल्ड, लोगों ने सोचा दैट इट विल एंड इन अराउंड दिसंबर, क्रिसमस के आसपास खत्म हो जाएगी ये वर्ल्ड वॉर, बट इट टुक मोर देन 4 years टू एंड. What were the consequences of this world war on the economy of the world? पहली चीज, this was the first war which was using the machine guns, tank, aircraft, chemical weapons, जो बहुत मैसिवली यूज हुए थे. इससे पहले की वॉर्स में इतनी ज्यादा ये सारी चीजें यूज नहीं होती थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था, हर कंट्री के पास ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी. बट दिस वाज द वॉर जहाँ पे टैंक्स का यूज हुआ पहली बार, एयरक्राफ्ट का यूज हुआ. So it was a very large scale kind of massively these weapons were being used, which destroyed which had the impact on on all the nations, which was quite widespread consequence. Second thing, millions of soldiers were recruited. War के अंदर हमें soldiers चाहिए, जैसे इंडिया में भी हमने देखा था. If you remember that Indian nationalism in India, people were being forcefully recruited in the British army, so that these Indian soldiers could be sent to the war front where the Britishers were fighting. So similarly, जितने भी एबल्ड मैन थे, जो स्ट्रॉन्ग मैन थे कंट्रीज में, वो सारे सोल्जर्स की तरह रिक्रूट कर लिए गए. अराउंड 9 million people died and 20 million were injured. So इतना ज्यादा ह्यूमन लॉस हुआ इस पर्टिकुलर वॉर में. And most of the killed and maimed were men of working age. ऐसे लोग, क्योंकि जो एबल्ड मैन थे, जो स्ट्रॉन्ग मैन थे, जनरली वो वर्किंग एज वाले एज ग्रुप होता है, विच वी कॉल इट अराउंड 15-16 से लेकर अराउंड 50-55-60 तक का जो एज ग्रुप होता है, जिसको हम कहते हैं वर्किंग एज ग्रुप. जिस टाइम पे लोग people have the potential to work for the nation, work for their family, work for the economy development. उस टाइम पे ऐसे एबल्ड लोगों को, स्ट्रॉन्ग मैन को जबरदस्ती सोल्जर्स बना दिया गया, वॉर में लड़ने के लिए भेज दिया, जो वहां पे मैक्सिमम लोग मर गए. तो क्या इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हुआ? दैट देयर वर नो पीपल, नो दीज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल, और वर्किंग फोर्स जो थी वो रिड्यूस हो गई. मोस्टली दैट फोर्स, दैट पर्टिकुलर जो वर्किंग एज ग्रुप था, उसमें मोस्टली विमेन केम अप, क्योंकि अब घर में अगर वो विमेन ही रह गई हैं तो दे नीड टू गो आउट फॉर द वर्क, so they started working. With the fewer numbers within the family, household income declined, क्योंकि जो कमाने वाले लोग थे वो तो सोल्जर बन के चले गए. So जो इनकम थी, फैमिली इनकम, वो कम होती चली गई. इंडस्ट्रीज वर रीस्ट्रक्चर टू प्रोड्यूस अ वॉर रिलेटेड गुड्स. अब कॉटन के गारमेंट्स बनाने के बजाय, या आपकी डेली यूज की आइटम्स बनाने के बजाय, these industries were now being instructed to manufacture those items which were being used in the war, जो वॉर के टाइम पे जरूरत थी, ऐसी चीजें इंडस्ट्रीज में बननी शुरू हो गई. सो वो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ, and societies were reorganized, which I just told
that as the men went to battle, women stepped into undertake the job. So वो एक societal change भी वहां पे आया. This led to snapping of economic links between world's largest economic powers. अब एक और change आया इस First World War का. Initially, यूरोप के जो nations थे, these were considered धीरे धीरे जैसे जैसे after when Europeans took the charge of the trade, world trade, when they became the nodal center, as we discussed, कि nodal center बन गया था trade का. तो जो ब्रिटेन था या जो यूरोपियन नेशंस थे, दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप देयर इकोनॉमी ऑन लार्ज स्केल. तो ये बहुत पैसे वाले माने जाने लग, धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे. लेकिन as these European nations were completely into the war, तो इनका बहुत खर्चा हुआ, बहुत एक्सपेंडिचर हुआ, बहुत सारे लोग, ह्यूमन रिसोर्स स्पॉइल हो गए, बहुत सारा इनको ओवरऑल लॉस हुआ इकोनॉमी का, जिसकी वजह से they started taking money from USA. पहले क्या होता था, यूरोप के नेशंस बड़े थे, यूएस से इनसे पैसा लेता था, बाकी नेशंस इनसे पैसा लेते थे, लेकिन और इनके कंपैरिजन में यूएस से कंपैरेटिवली एक थोड़ा सा छोटा नेशन मतलब इकोनॉमिकली माना जाता था, क्योंकि यूरोप में ज्यादा पैसा आना शुरू हो गया. बट बिकॉज द यूरोपियन नेशंस वर मेनली इन्वॉल्व इन द वॉर, इनके ऊपर बहुत ज्यादा सेटबैक हुआ वॉर का, ड्यू टू विच ये धीरे धीरे इनके पास पैसा आने की कमी हो गई, एंड देन दे टर्न टूवर्ड्स यूएसए टू गिव देम मनी ऑन लोन. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ, दैट दिस वॉर ट्रांसफॉर्म द यूएसए एज एन इंटरनेशनल क्रेडिटर रादर देन बीइंग अ डेबिटर. जो इनिशियल टाइम में, जो 18th सेंचुरी में यूएसए यूज्ड टू टेक द मनी फ्रॉम यूरोप on loan, now USA have changed itself or transform हो गया, and it was now giving money to the European nations. So Britain ने बहुत सारा USA से पैसा उधार लेना शुरू कर दिया. And if you remember Hitler's chapter, we discussed in 9th class as well, that जब जर्मनी के ऊपर clauses लगाए थे, when Germany was under the crisis, economic crisis, at that time USA came up with the Davis plan, जिसमें उसने जर्मनी को भी उधार दिया था. So what was the result? At the end, the US and its citizens owned more overseas assets assets than foreign governments and citizens owned in the USA. What they're talking here about, USA, यूरोप का सपोज ये 1, 2, 3, 4 नेशंस हैं जिन्होंने यूएसए से पैसा उधार लिया. Now they have taken the credit from USA. So USA said after some time कि you just give me back my money. So these nations, what they said, क्योंकि अब war में involve हो चुके थे, war में involve होने के बाद they have already faced the loss of the economy. So they said that we don't have money actually. We can't repay you in the form of money. What we can do, we can give you a part of our land. आप हमारे यहाँ से ये वाला हिस्सा ले लो, हमारे यहाँ से आप ये वाला हिस्सा ले लो. We can only repay these loan to USA, they said, in the form of land. So सबने अपना कुछ हिस्सा USA के नाम कर दिया. So because of that, उसका consequence क्या हुआ after war USA के ऊपर, that USA के पास बहुत सारी overseas assets हो गए थे. ये जितने अगर हम बोले तो ये 1, 2, these are just example. ये 3, 4 चारों लैंड एज अब यूएसए की हो गई. सो वो ये क्या हुआ, यूएसए की अपने नेशन से हटकर अक्रॉस द सीज दूसरे नेशंस में, यूरोप में कुछ लैंड के हिस्से उनको मिलने शुरू हो गए, बिकॉज यूएसए gave a lot of money on loan during the war. That was the impact on the USA. Now post war recovery, जब वॉर खत्म हो गई उसकी रिकवरी कैसे की गई. Impact on Britain, when we talk about Britain, which was the world's leading economy in the pre-war time. वॉर जब शुरू हुई थी उससे पहले सबसे वर्ल्ड की richest economy बन गया था ब्रिटेन. Particularly faced a prolonged crisis क्योंकि ब्रिटेन was completely into the war, बहुत लॉस हुआ था उसको. So ब्रिटेन के ऊपर काफी लंबा उसका इकोनॉमिक क्राइसिस चले. While Britain was preoccupied with war, industries had developed in India and Japan. So Britain thought
इनिशियली जब वॉर स्टार्ट हुई थी कि ये वॉर खत्म हो जाएगी, वी विल कम बैक इन द ट्रेडिंग सिनेरियो अगेन, वी विल टेक चार्ज ऑफ द कंप्लीट वर्ल्ड ट्रेडिंग एज वेल। लेकिन जब तक ब्रिटेन 4 साल लड़ाई लड़के वापस आया, तो आके उसने देखा कि ऑलरेडी इंडिया और जापान की इंडस्ट्रीज ने थोड़ा थोड़ा फ्लरिश करना शुरू कर दिया था जब ब्रिटेन वॉज बिजी विद द वॉर। It was difficult for the Britain to recapture its dominance in the Indian market and to compete with Japan internationally. Burdened with huge external debts, so ब्रिटेन की हालत खराब हो गई। वो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर जो एस्टैब्लिश करके गया था, उसको वो काफी हद तक शेटर्ड हो गया था। इंडिया वापस से रीगेन करना शुरू कर रहा था अपनी पावर, क्योंकि उस टाइम पे नेशनलिस्ट वर आल्सो वर्किंग। इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी, ये इसमें हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट दे आल्सो started generating some of the money. They established their industries when Britain was busy with the war, First World War. तो उस टाइम पे ब्रिटेन को वापस से बहुत टाइम लगा इस क्राइसिस में से निकलने में। It came under a great debt. Now, after the war, there was increase in the demand, production, and employment. There were a lot of people. Just imagine, suppose millions and millions of soldiers were there. Now war ended. By the time these soldiers were fighting in the war, so government were also paying to the families, जो भी उनको salaries वगैरह मिल रही थी. But now when the war has come to an end, so why the government will be giving the salaries to the soldiers? अब उनकी soldier की job तो चली गई. Now they came back to their villages or to their houses, their areas where the जो भी urban areas, कहीं पे भी city, village, जहाँ पे भी लोग रह रहे थे, जहाँ से गए थे, वापस आए. Now they wanted the employment. लेकिन अब क्या था, एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी विमेन ले चुकी थी वहां पे, सो ना एम्प्लॉयमेंट मिल पा रही थी और डिमांड बढ़ रही थी खाने की, सामान की, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर प्रॉब्लम वाज देयर विद द पीपल। प्रोडक्शन कंट्रैक्टेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। अब वो गरीब जो सोल्जर्स वापस आए थे, उनको बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, जगह ही नहीं थी कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देते। Government reduced war expenditure. In 1921, 1 in every 5 British worker was out of work. So Britain की situation ऐसी थी 1921 में, 18 में war खत्म हुई थी, 1921 की situation ऐसी थी जहां पे हर 5 में से एक इंसान के पास नौकरी नहीं थी, जॉब नहीं। उसके बाद आया एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज इन क्राइसिस। एग्रीकल्चर भी क्राइसिस में था। क्यों क्राइसिस में था? क्योंकि everyone wanted food for their country, for the people of their country. तो हर कंट्री को ये लगा कि हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, हम कैसे करें कि वी नीड टू अरेंज फॉर द फूड। सो दे डिसाइडेड कि वी शुड इंक्रीज द प्रोडक्शन। हम वीट उगाना शुरू करते हैं। सो वीट और बाकी फूड प्रोडक्ट्स, एवरी कंट्री इन द यूरोप दे ट्राइड टू ग्रो देयर फूड a lot in their nation. वो फूड ग्रो करने की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, डिमांड से भी ज्यादा प्रोडक्शन चला गया, सो उनका जो फूड के प्राइसेस थे दैट आल्सो फेल डाउन। सो दैट वाज अ लॉस इन द एग्रीकल्चर इकोनॉमीज एज वेल। मतलब पूरे वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में बिजी था, जैसे ही वर्ल्ड वॉर से निकला उन्होंने एग्रीकल्चरल ग्रोथ करनी शुरू की, उन्होंने अपना वीट ग्रो करना शुरू किया, और इतना ज्यादा वीट का प्रोडक्शन हो गया वर्ल्ड में कि लोग खाने वाले कम थे, वीट बेचने वाले ज्यादा थे, तो विच रिड्यूसेस इट्स प्राइसेस, जिसका नुकसान ऑल ओवर द वर्ल्ड फार्मर्स को हुआ। They were not able to sell their produce on the greater prices in the market. Then the third thing was rise of mass production and mass consumption. आफ्टर द वॉर बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो रहा था और उतने ही लार्ज स्केल में कंज्यूम भी हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। पहले हमने ब्रिटेन के ऊपर इम्पैक्ट देखा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन यूएसए। वॉर हेल्प बूस्ट द यूएस इकोनॉमी, क्योंकि सब इससे पैसा लेने लग गए थे। आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर आफ्टर द वॉर,
the US economy resumed its strong growth in the early 1920s. यूएस से ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था यूएसए के ऊपर, क्योंकि यूएसए के पास पैसा था। यूरोपियन नेशंस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम खर्चा कर चुके थे और लोन ले चुके थे ड्यूरिंग द वॉर। यूएसए को थोड़ा सा 1-2 साल में, जैसे आफ्टर द वॉर 1918 वॉर एंडेड, सो 1918 से 1920-21 तक यूएसए बहुत हद तक इकोनॉमी को संभाल लिया था उसने, एंड इट स्टार्टेड रीग्रोइंग इट। 1927 तक यूएसए की इकोनॉमी ग्रो हुई, और फिर 1927 के बाद फिर से ग्रेट डिप्रेशन आया, जो वर्ल्ड का ग्रेट डिप्रेशन दैट यू डिड इन we have already done in the previous chapter also. तो उसका जो शेयर मार्केट थी क्रैश हो गई थी, बिकॉज ऑफ विच यूएसए फिर से अपनी उसकी इकोनॉमी डाउन हो गई। बट लेकिन जो पोस्ट वॉर टाइम था टिल 1927, इससे काफी उसने गेन कर लिया था अपनी इकोनॉमी में, क्योंकि यूएसए lent a lot of money to the European and other nations. Important feature of US economy, mass production was there in 1920s. It became a characteristic feature of industrial production in the USA. बहुत ज़्यादा amount पे production हो रहा। Then there came, this is important one, then there came the T model Ford. So Ford की कार हम आज भी देखते हैं। World's first mass produced car which was there, which started after the First World War in USA. So a well-known pioneer of mass production was the car manufacturer Henry Ford. Henry Ford ने Ford company को introduce किया था. So he started a new system of the production. पहले क्या होता था, अगर हम अगर मतलब किसी भी प्रोडक्शन की बात करें in the initial time, how people used to just when we talk about the any kind of production, at that time what was happening, if suppose a person was manufacturing a particular thing, कोई भी चीज अगर हम बोलते हैं, suppose कोई cups बना रहे थे, so what they were doing, प्रोडक्शन कैसे होता था उस कप का, कि कप के जितने भी पीसेस हैं, जितने भी उसकी डिजाइनिंग है, कलरिंग है, उसका शेप देना है, पॉट के मतलब पॉटरी के थ्रू उसको शेप देना है, उसको कलर करना है, पक्का करना है, उसको हैंडल लगाना है, एवरीथिंग वाज डन बाय द सिंगल पर्सन। एक पर्सन था, वो एक कप स्टार्टिंग से एंड तक वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता था। व्हाट हेनरी फोर्ड हैज डन, हेनरी फोर्ड ने क्या किया, उसने एक नया सिस्टम चलाया। जैसे आज भी आप ये जो डिफरेंट फैक्ट्रीज में अगर आप जाते हो, यू माइट हैव ऑब्जर्व, जैसे ये ब्रिटानिया वगैरह आप गए होगे, या इफ यू हैव सीन सर्टेन प्रीवियस मूवीज, जो चार्ली चैपलिन की मूवीज आती हैं, इफ यू हैव सीन देयर, वहां पे क्या होता था, ऐसे चेन, मूवेबल चेन थी, ये चेन ऐसे मूव करती रहती थी, लाइक जो आप एयरपोर्ट पे आपका जो लगेज आता है, दैट कम अंडर विद ऑन अ पर्टिकुलर बेल्ट, वो लगेज मूव करता रहता है, आप अपना लगेज उसमें से उठा लो। सिमिलरली देयर वाज अ सिस्टम कि ऐसे ये चेन की तरह ये मूव कर रहा है, वो मूवमेंट होता रहेगा, एंड पीपल विल बी स्टैंडिंग इन बिटवीन, कि ये यहाँ पे हर थोड़ी दूर पे कुछ कुछ लोगों को अपॉइंट करते थे, विच वॉज स्पेशलाइज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। अगर हमें कोई एक सामान बनाना है, जैसे कार की बात कर रहे हैं, कार की मैन्युफैक्चरिंग कैसे स्टार्ट की, हेनरी फोर्ड सेड कि व्हाई one person need to do the complete manufacturing, it takes time, it increases cost. What you do, you are manufacturing car, you divide the work, पूरा जो कार की मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऐसे डिफरेंट यूनिट्स डिवाइड कर दो, कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे प्रोसेसेस लगेंगे। यू अपॉइंट 8 पीपल, और एक उन्होंने इस तरह से असेंबली लाइन बना दी, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो मूव, जैसे हमने बोला बेल्ट एयरपोर्ट पे मूव होती है, उसको बोलते हैं असेंबली लाइन, और उसमें हर कुछ दूरी पे कुछ कुछ लोगों को खड़ा किया। पहला स्टेप
कार मैन्युफैक्चरिंग का ये करेगा, इसका होते ही ये ऑटोमेटिक यहाँ सेकंड वाले पे पहुंच जाएगा, फिर वो अपना पार्ट मैन्युफैक्चर करेगा, सेकंड थर्ड पे पहुंच जाएगा, वो अपना पार्ट मैन्युफैक्चर करेगा, फोर्थ पे पहुंच जाएगा, एंड सो ऑन. सो this new system was started by the Henry Ford. तो उसने ये एक नया सिस्टम स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, the manufacturing of the vehicles became cheaper and very faster. और ये फास्ट मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से जो कार के प्राइसेस थे वो भी डाउन हो गए. कार के प्राइस डाउन होने से जो लोग कार को बाय कर पा रहे थे, they became more people were able to afford the car in the nation. That this was the new system, T model Ford बोलते हैं इसको, which was started by Henry Ford over there. Okay, I will restart the class again. Time is going to just ending over here. Rejoin very quickly.